Alright students, to start with the topic object-oriented programming language, first of all we discuss about the vision and mission of our institute. Our vision is to become a renowned center of outcome-based learning and work towards academic, professional, cultural and social enrichment of the life of individual and communities. And what are the missions of our institute? That is, focus on evaluation of learning outcome and motivate students to integrate research aptitude by project-based learning, identify based on performed perception of Indian regional and global needs, areas of focus and provide platform to gain knowledge and solution, offer opportunities for interaction between academia and industry, develop human potential to its fullest extent so that intellectually capable and imaginatively gifted leaders can emerge in a range of professions. These are the vision and mission of our institute, as well as here is the department vision and mission of department. So what is the vision of department? To become renowned center of excellence in computer science and engineering and make competent engineers and professionals with high ethical values prepared for lifelong learning. And missions are to impart outcome-based education for emerging technologies in the field of computer science and engineering, to provide opportunities for interaction between academia and industry, to provide platform for lifelong learning by accepting the change in technologies, and the last one, to develop aptitude of fulfilling social responsibilities. So these are the vision and mission of our department. So let's discuss what topics will be covered in our first unit, that is of subject object-oriented programming language. The first topic is introduction to subject and scope. Subject का introduction part और इसका scope. Introduction to different programming paradigm. Characteristics of OOP, class, object, data member, member function, structures in C++, different access specifiers, defining member function inside the class, defining member function outside the class, and array of objects. So हम ये सारे topics जो हैं इसमें cover करने वाले हैं. So यहाँ पे हम NPTEL का कुछ content follow करेंगे. तो यहाँ पे हम जो NPTEL का content follow करने वाले हैं, that is given by Professor Partha Pratim Das. Okay. So let's start with the introduction of subject. So first of all, C++ is a father of all languages today. As you know कि आप लोग C language पढ़कर आए हैं अभी, ठीक है. C में कुछ उसके कॉन्स रह गए थे, काफ़ी सारे कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, बट कॉन्स वहाँ पर जो C के रह गए थे उसको ओवरकम किया C++ ने. सो बेसिकली C++ क्या है, ये फादर है ऑल लैंग्वेजेस का. ड्यू टू एफिशिएंसी C++ ऑफर इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट. पाइथन इंटरप्रेटर एंड JVM ऑल्सो रिटर्न इन C. जो हम अभी पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन हम लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं अभी, पाइथन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है. JVM, ये जो इनके लिए प्रोग्रामिंग लिखी गई है वो भी C में लिखी गई है. So recent updates of C++, क्या क्या updates हैं, namely C++11, C++14 and C++17. So this course will help or develop to knowledge of C++ programming and basic data structure. ये कोर्स आपको किस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करेगा, C++ प्रोग्रामिंग की आपको लैंग्वेज की नॉलेज आपको मिलेगी, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फैमिलियरिटी विथ वेरियस OOP कंसेप्ट. बहुत सारे हम लोग यहाँ पे OOPs कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कोर्स आउटकम की, ठीक है. हमारे सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम क्या रहेगा? अंडरस्टैंड द पैराडिग्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन कंपैरिजन ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दिस इज द फर्स्ट कोर्स आउटकम, CO1. Second one is apply the class structure as fundamental building block for computational programming. Third one, apply the major object-oriented concept to implement object-oriented programming in C++. And the last, that is CO4, implement the concept of abstraction, inheritance, polymorphism, dynamic binding, and generic structures in building reusable code. So let's start with the introduction part of C++. First of all, कि हम C++ पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है. What is the reason कि हम लोग C++ पढ़ रहे हैं? C++ को पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है? C में हमने, C सबसे बेसिक लैंग्वेज है आपकी,
ठीक है, सी हमने देखा उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, बट उसमें काफ़ी सारे ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो सी में नहीं हैं। वो उसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब ऑब्वियसली जितना ट्रेंड हमारा टेक्नोलॉजी का बढ़ता जा रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी चाहिए, बहुत सारे हमें फीचर्स वहाँ पर और भी चाहिए। सो C++ इज अ मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। क्लियर है। सबसे पहले हमारा जो C++ है ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको क्रिएट किसने किया है, इट वॉज क्रिएटेड बाय वर्जर्नेस स्ट्रूप इन 1983 एट बेल लैब्स। C++ इज एन एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग। C प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। जैसे मैंने बोला कि C के जो कॉन्स थे उसको ओवरकम किया हमारे C++ ने, तो C का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज C++। एंड द प्रोग्राम्स रिटन इन C लैंग्वेज कैन रन इन C++ कंपाइलर। और इसी के साथ में जो हमारे C के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो हमने C लैंग्वेज में लिखे हैं उनको हम C++ कंपाइलर में भी रन कर सकते हैं। So the development of C++ actually began 4 years before its release in 1979. इसका actually ये कब start हो गया था, उसकी release के 4 years पहले ही। It did not start with the name C++। का starting में हमने जो name दिया था वो दिया था C with classes। अब ये classes क्या है, object बार बार word आ रहा है यहाँ पे, object क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। In the late part of 1983, C with classes was first used for AT&T's internal programming needs. Its name was changed to C++ later in the same year. पहले उसका नेम हमने क्या रख रखा था, C with classes ही रख रखा था। बाद में उसका नेम चेंज कर दिया गया, that is C++। It is of course also used in wide range of other application domain। बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया जाता है। नोटेबल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में C++ सपोर्ट ये क्या करता है, हमारा इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है जो हमारा C नहीं करता था। अब ये इनहेरिटेंस, कुछ कीवर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता है क्या होता है इनका मीनिंग, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी मैंने बोल दिया इनहेरिटेंस, डायनामिक बाइंडिंग, आगे वर्चुअल क्लास फंक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारी अपकमिंग स्लाइड्स में, इसके बारे में हमें पता चलेगा कि क्या सारे जो चीज़ें हम बोल रहे हैं यहाँ पे उसका क्या मीनिंग क्या है। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। C और C++ में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग C पढ़कर आए हैं, ठीक है, हमने लास्ट सेमेस्टर में C की बात करी थी। C क्या थी, हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। ठीक है, मतलब हाँ लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो C हमारी क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। वही C++ क्या है आपकी, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C हमारी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है। इन द केस ऑफ C++ के केस में हमारी बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है। C में मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स आर अलाउड, बट इन द C++ दीज आर नॉट अलाउड। हम मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते ग्लोबल वेरिएबल्स का। C requires all the variables to be defined at the starting of a scope, and C++ will allow the declaration of variables anywhere in the scope, that is at time of its first use। यहाँ पे वेरिएबल्स C में क्या होते हैं, हमें उनको स्टार्टिंग में ही डिफाइन करना होता है, बट C++ में जहाँ हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है, लेट्स सपोज कि मुझे प्रोग्राम के इन बिटवीन में मुझे किसी नए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्कोप में आप उनको डिक्लेयर कर सकते हो। इन C malloc and calloc functions are used for memory allocation and free function for memory reallocating। yes मैम वो कुछ स्टूडेंट अभी शायद उनको ज्वाइन कर लेंगे क्या आप? यहाँ पे एक सेकेंड में चेक करती हूँ। कौन से स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। मैम रोहन है शायद। उसको बोलो फिर से ज्वाइन करें, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्सेस आए तो मैं उनको अलाउ करूँ।
डन। कौन स्टूडेंट्स हैं, हो गए ज्वाइन? ओके, स्टूडेंट्स आते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं एडमिट कर दूंगी उनको, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सी में हमारे मेलॉक और कैलॉक फंक्शंस होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, मेमोरी को अलोकेट और मेमोरी को फ्री करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है, C++ में वो कीवर्ड्स हमारे जो है वो चेंज हो जाते हैं, हम लोग वहाँ पे न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स को यूज देते हैं। ठीक है, मेमोरी अलोकेटिंग एंड डी अलोकेटिंग। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++। सो सबसे मेन हमारा डिफरेंस क्या है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे कि हमारे C++ नेम में ही आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इसको ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है उसके ऊपर आते हैं हम। पहले उसके देखते हैं हम यूजेज ऑफ C++ लैंग्वेज। C++ की यूजेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज बाय प्रोग्रामर्स टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर्स के थ्रू यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू बिल्ड ड्राइवर्स फॉर वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस। ड्राइवर्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, ऑडियो के लिए ड्राइवर हो गया, लैन के लिए ड्राइवर हो गया, तो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए भी हम C++ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सर्वर के लिए अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है या स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन हो गई। स्पेसिफिक एप्लीकेशन का क्या मतलब हो गया कि मुझे म्यूज़िक सुनना है। ठीक है, म्यूज़िक सुनने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया ना कि लिसनिंग म्यूज़िक लिसन सुनना है, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। तो ऐसे क्या हो गया, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें भी हम C++ की हेल्प लेते हैं। यूज इन द क्रिएशन ऑफ वीडियो गेम्स को क्रिएट करने के लिए भी C++ का यूज़ आता है। बट अब अगर अभी के ट्रेंड की मैं बात करूँ तो अभी हमारा पाइथन बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, जावा जितने भी गेम्स हैं, आप लोगों के पुराने जो नोकिया फ़ोन्स होते थे अगर उसमें देखा हो जावा सपोर्टेड ऐसा लिखा आता था। ठीक है, तो वो जितने गेम्स हैं वो क्या होते थे, जावा प्लेटफॉर्म पर रन होते थे। मतलब ये देखो क्या फ्लो रहा हमारा प्रोग्राम्स का। सबसे पहले C आया, देन C++ आया, देन हमारा कौन आ रहा है, जावा, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो पाइथन का। इनके इन बिटवीन बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी आई, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बट ट्रेंड की बात करें तो C++, जावा और पाइथन अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। आगे आप लोग अगर कंपनी साइड की बात करते हो तो वहाँ पर भी पाइथन की बहुत डिमांड है। हर जगह हर एरिया में आजकल पाइथन को पूछा जा रहा है। बट वाई वी आर टीचिंग C++ एंड C++, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम बेसिकली, ये हमारा क्या है, बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिनको हमें पढ़ना है ताकि हमारे आगे के कंसेप्ट क्लियर हो, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप लोग कोई भी लैंग्वेज पर स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक लैंग्वेजेस C++ के कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो, कैसे भी प्रोग्राम्स बना सकते हो। हर प्रोग्राम का कंसेप्ट वही रहता है, सेम रहता है ऑलमोस्ट। वहाँ चेंज हो जाता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसके डेटा टाइप्स चेंज हो जाते हैं, उसका लिखने का मेथड चेंज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स चेंज हो जाता है। ठीक है, C में क्या करते थे हम लोग, इनपुट लेना है तो हम लोग वहाँ पे कुछ और लिखते थे। C++ में अगर हमें इनपुट लेना है यूज़र से तो अब हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे कीवर्ड। C में हम क्या कीवर्ड यूज़ करते थे, printf, scanf यूज़ आता था। ठीक है, अब C++ में हम क्या यूज़ करेंगे, उसी जगह पर यहाँ पे cin और cout का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे आपके, वहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट भी चेंज होंगे जो हमारे पास C में नहीं थे और C++ में आ जाएंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा। क्या क्या प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा है हमारे पास में, दो प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा होते हैं, इम्परेटिव एंड द डिक्लेरेटिव। इम्परेटिव में आपके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और पैराडिग्मा, इसमें हमारी C लैंग्वेज आ जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी हैं
लाइक C++, जावा, पाइथन, ये सब हमारे किस में आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाती है। एंड द थर्ड वन पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच, वही हमारे डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा में क्या क्या होंगे, लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OOP। OOP की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, OOP दैट मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब पहले इसकी फुल फॉर्म को हम समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन कि यहाँ पे क्या होंगे, हमारी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे और उन ऑब्जेक्ट के आगे पीछे हमारी पूरी कहानी घूमेगी। ठीक है, जितनी भी हम बातें करेंगे उन ऑब्जेक्ट के आगे पीछे हो रही है, तो इसीलिए इसको बोला है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया for both data and functions that can be used as template for creating copies of such modules on demand। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमने क्या कर दिया, मेमोरी एरिया फॉर डेटा एंड फंक्शंस दैट कैन बी यूज फॉर टेम्पलेट, मल्टीपल कॉपीज हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी प्रोग्रामिंग किसके पर बेस्ड हो गई, टोटली ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड हो गई। तो अगर मैं बात करूँ उसकी फीचर्स की, ऑब्जेक्ट क्या है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता क्या है। सो बेसिकली ये क्या हमारा एक न्यू वे है, इट्स न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम्स और हमारे जितने भी चीज़ें उनको ऑर्गेनाइज और डेवलप करने के लिए ये हमारा एक न्यू मेथड हो गया दैट इज़ नथिंग टू डू विद एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। However, not all languages are suitable to implement OOP concept easily। यहाँ पे जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो OOP कंसेप्ट को इजीली फॉलो कर सकें। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इट एम्फसाइजेज ऑन डूइंग रेदर देन प्रोसीजर। जैसे हमारा C लैंग्वेज जो थी वो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। ठीक है, तो OOP की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोल रही है कि ये बेसिकली चीज़ों को करने में बिलीव करती है, उसकी प्रोसीजर से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके बाद में क्या आ रहा है, उसको आउटपुट लाने से मतलब है। ठीक है, इज ऑन डूइंग रेदर देन प्रोसीजर, उसको प्रोसीजर से मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट। यहाँ हम प्रोग्राम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टराइज कर दिया, उसकी कैटेगरीज बना दी हमने यहाँ पे। फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन डेटा स्ट्रक्चर्स। फंक्शंस यहाँ पे क्या होंगे, उनको हमने ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ इस तरह से टाई अप कर दिया। ऑब्जेक्ट्स और जो डेटा का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ में लिंकअप कर दिया। डेटा इज हिडन एंड कांट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। डेटा यहाँ पे हम हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसमें फीचर अवेलेबल है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हाइड कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमें B क्लास को नहीं दिखाना। लेट सपोज हम एक क्लास, तुम लोगों की क्लास की बात कर लेते हैं। ठीक है, C सेक्शन को कुछ चीज़ें हैं वो B सेक्शन को नहीं बतानी। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, हमें चाहिए कि हमें हमारी ये पर्टिकुलर, ये सिर्फ हमारी क्लास के बीच में इंफॉर्मेशन रोटेट होनी चाहिए, दूसरे जो सेक्शन है हम उनके साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। न्यू डेटा ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक दूसरे के थ्रू फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड। यहाँ न्यू डेटा और फंक्शंस को भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉलो बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो C++ है वो हमारी क्या करती है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। वही C जो है दैट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हमारी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऊपर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार बनता है।
ठीक है, तो इनको ये कंसेप्ट ओप्स के कंसेप्ट है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप आगे C++ पे स्विच कर सकते हो। अगर ये आपको यहीं पे डाउट आ रहा है तो आप लोगों को आगे भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसके, इनको अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास की। इनमें से मैं बात करूँगी पहले क्लास की। क्लास क्या होती है? ठीक है, क्लास इज एन ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ तो क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट से क्या मतलब है, चलो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोल दिया पेन, ठीक है, आई नीड अ पेन। क्या पेन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? यस, टेल मी एनीवन, क्या पेन नाम की पर्टिकुलर कोई चीज एग्जिस्ट करती है? नो। मैं बोलूँ कि मुझे पेन चाहिए, पेन, दैट मीन आप लोग मुझे बोलोगे कोई भी पेन ला के दे दोगे, सेलो का पेन दिया, वो सेलो हो गया ना। मैं तो बोलूँ पेन, पेन नाम की कोई चीज़ है क्या वहाँ पे? नो, पेन नाम की पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं। मैंने बोल दिया कार, मैंने बोल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, सबका अपना अपना नेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट नाम का कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ये एक हमारी ओवरऑल क्लास होगी। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या ये पर्टिकुलर कुछ एग्जिस्ट करता है? ये बंदा फिजिकली वहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हो सकता है? नो। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लास, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट क्या हो गए अभी? अगर मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ तो ABC, राम, श्याम, महेश, जो भी है सब, ये सब क्या हो गए? हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। और क्लास क्या होगी? ओवरऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या बात बोलेंगे वहाँ पे? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम उसको बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होगी? पर्टिकुलर एंटिटी जो फिजिकली प्रेजेंट हो सकती है, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, वो हमारी चीज़ें किस में काउंट होंगी? ऑब्जेक्ट में। दोनों कंसेप्ट क्लियर है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट कैटेगरी की बात करी तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये सारे हमारे क्या हो गए? इसकी ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो वहाँ पे क्लास क्या हो गई हमारी? फ्रूट। फ्रूट एक क्लास हो गई और उसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए? हमारे जितने भी फ्रूट आ सकते हैं वो सारे इसकी ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? क्लास क्या हो जाएगी? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। वो क्या होंगी? अब मैं देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कॉमन प्रॉपर्टीज से, कि हम अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? कोई ना कोई स्टूडेंट, या तो राम, श्याम, हीना, टीना, जो भी है, ये सारे उसमें आ जाएंगे हमारे। ठीक है, बट अगर मैं बोल दूँ स्टूडेंट क्लास में आ गया मैंगो, तो ये और राम की और मैंगो की प्रॉपर्टीज तो हम नहीं बोल सकते, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, तो ये क्लास नहीं होगी। क्लास क्या होंगी? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की, जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? एक क्लास है। एंड सम प्रोग्राम पार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लास। कुछ प्रोग्राम पार्ट को हम, अब अगर मैं प्रोग्रामिंग में इसकी बात करूँ तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? कुछ प्रोग्राम पार्ट को, प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो मैंने बोल दिया कि 5 लाइन ऑफ कोड जो है वो एक क्लास का पार्ट है। सो इन C++ अ क्लास इज अ न्यू डेटा टाइप। क्लास क्या है? C++ में एक न्यू डेटा टाइप है दैट कंटेन मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द वेरिएबल्स। तो इस डेटा टाइप में क्या क्या चीज़ें होंगी? कुछ मेंबर के वेरिएबल्स होंगे, मेंबर के फंक्शंस होंगे, जो उन वेरिएबल्स को ऑपरेट करने के लिए हम यूज में लेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास। एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटी इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ये क्या हो गई हमारी? एक रन टाइम एंटिटी हो गई। They may represent a person, a place, a bank account, a table of data or any item that the program must handle. अब इसमें हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई बैंक अकाउंट हो सकता है,
एक टेबल का कोई डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हमारी क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो पर्टिकुलर उस क्लास से बिलोंग करेगी। सो ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट का? ओके, सो नेक्स्ट हमारा थर्ड कंसेप्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ओके, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो इन बिटवीन बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों को कोई डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, द थर्ड वन इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। अब इस वर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ देखो लिखा आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन से मतलब क्या है? अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्शन दैट मीन कुछ चीज़ को छुपाना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करना, हाइड करने से मतलब है। एंड एनकैप्सुलेशन दैट मीन कि किसी चीज़ का हमने एनकैप्सुलेट कर दिया है, मतलब उसको बाइंड अप कर दिया है, किसी चीज़ के साथ उसको बाइंड कर दिया है, तो वो हमारा क्या होगा, एनकैप्सुलेशन। तो अभी यहाँ अगर मैं बात करती हूँ इसकी ओप कंसेप्ट में, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसके ऊपर डिफाइन करें तो क्या होगा, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। डेटा को रैप करना, फंक्शंस को रैप करना पर्टिकुलर किसी एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल क्लास में, उसको हम क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन। इसके लिए एक इजी सा एग्जांपल हम और ले सकते हैं, ठीक है, बहुत जनरल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। टैबलेट्स सबने खाई हैं, उनमें सबने कैप्सूल्स देखे हैं, कैप्सूल भी सबने देखा होगा, कभी उन कैप्सूल्स को ओपन करके देखा है? उसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी टैबलेट्स होती है, ठीक है। तो अब वो जो छोटी छोटी टैबलेट्स है, अगर हमें डॉक्टर बोले ये छोटी छोटी टैबलेट्स वो हमें निकाल के दे दे कि अब आपको उसको लेना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा कि कुछ गिर गई, हमारे हाथ से स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब उन छोटी छोटी एंटिटीज़ को हमने क्या किया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, उसके बाहर एक लेयर लगा दी, दैट इज कैप्सूल। हम उसको क्या बोलते हैं, वो कैप्सूल हो गया। तो उसको हमने क्या किया, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हमने उसके डेटा को बाइंड कर दिया, रैप अप कर दिया। सो दिस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। हम अगर यही चीज़ डेटा के ऊपर करेंगे तो ये हमारा एनकैप्सुलेशन कहलाएगा, और ये हमारा जो है ये फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को रैप कर देते हैं। जैसे हमने उन छोटी टैबलेट्स को क्या किया, रैप कर दिया, किसके थ्रू, कैप्सूल के थ्रू। वहीं हम यहाँ पे जब डेटा को रैप कर देंगे तो ये हमारा कंसेप्ट किसके अंदर रैप करेंगे, यहाँ हम क्लास के अंदर रैप करेंगे, ठीक है। वहाँ हमारा कैप्सूल है, बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास की। डेटा हमारा कहाँ रैप होगा, एक सिंगल यूनिट में, डेटा और फंक्शंस, दैट इज क्लास, एंड इट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। So data is not accessible to the outside world and only those functions which are wrapped in the class can access it. अब यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा मैंने रैप कर दिया है वो बाहर की वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल नहीं है, बट वो किसके लिए एक्सेसिबल है, जो उसके अंदर है। अगर अगेन मैं कैप्सूल की बात करूँ तो वो जो छोटी टैबलेट्स है वो बाहर की वर्ल्ड के लिए क्या हो गई, अभी रैप अप हो गई है, ठीक है। कौन उसको देख सकता है, क्या चीज़ें एक दूसरे को देख सकते हैं, जो उसके अंदर है प्रेजेंट। जो छोटी टैबलेट्स एक दूसरे के साथ में अंदर बहुत सारी प्रेजेंट है, वही एक दूसरे के डेटा को क्या कर सकती है, वहाँ पे एक्सेस कर सकती है। तो यही हमारी क्लास के अंदर होगा। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा और फंक्शंस को रैप कर देंगे, तो वो डेटा और फंक्शंस जो है वो आउटसाइड द क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते। अब वो आउटसाइड द क्लास का मतलब क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पार्ट आउटसाइड द क्लास है, ये पार्ट इनसाइड द क्लास है, तो वहाँ पे हम उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर क्लास जो है इसका स्कोप पर्टिकुलर इस पॉइंट से, मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका क्या हो गया, ये उसका स्कोप है कि यहाँ से यहाँ तक ही वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हम क्या बोलेंगे, ये हमारा स्कोप हो गया उस पर्टिकुलर क्लास का, जिसके बाहर वो जितने भी डेटा और फंक्शंस वहाँ पे अप्लाई किए गए हैं वो उस क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एनकैप्सुलेशन पार्ट। अब एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं बहुत सिमिलर हैं, दोनों में कुछ ना कुछ हाइड करने का काम हो रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ तो इट इज़
act of representing essential features without including the background detail and explanation. वो हमें क्या करेगा, सिर्फ essential features को बताएगा, उसके बैकग्राउंड में क्या डिटेल्स है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो हमें नहीं पता. ठीक है, इसके लिए भी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज योर मोबाइल फ़ोन. ठीक है, हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं. मोबाइल फ़ोन सबके पास में, सब उसको दिन भर चलाते हैं. ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन में मुझे व्हाट्सएप चलाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल से जाके व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करूँगी और मेरा व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब इसके पीछे कभी सोचा है कि क्या हुआ, मैंने अगर वहाँ क्लिक किया तो वो व्हाट्सएप ही कैसे ओपन हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप ओपन हुआ तो अब ये चल कैसे रहा है. ठीक है, मोबाइल फ़ोन में मैंने अगर साइड में बटन को क्लिक किया तो मेरी स्क्रीन जो है वो शट डाउन हो गई. मतलब मैंने वॉल्यूम वाला बटन प्रेस किया, हाई का किया, वॉल्यूम हाई हो गई, लो प्रेस किया, लो हो गया. तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि ठीक है मुझे हाई करनी है वॉल्यूम, तो मुझे इस बटन को प्रेस करना है. लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या उसकी प्रोग्रामिंग हमें पता है, क्या उसके पीछे कुछ तो होगा कि ये बटन प्रेस करने से वॉल्यूम हाई हो जानी चाहिए, कुछ तो प्रोग्रामिंग उसके पीछे भी हुई होगी. तो अब अगर ये जितने भी मोबाइल डेवलपर्स हैं, अगर वो हमें ये सारी डिटेल प्रोवाइड कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेंजेस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे. ठीक है, हम उसको पहली बात समझ नहीं पाएंगे कि किससे क्या करना है. तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं वो लोग, बाइंड कर देते हैं, उनको हाइड कर देते हैं. वो सिर्फ इसेंशियल फीचर्स आपको शो करेंगे. गेम इसमें है, हम लोग गेम खेलते हैं, लेकिन गेम कैसे बनाया गया है वहाँ पे, कैसे उसको कोड करके डाला गया है, वो सब हमें नहीं पता. हमें सिंपल स्ट्रक्चर उसका दिखता है, ठीक है हमें इसको यहाँ प्रेस करना है तो ये चल जाएगा, हमें इसको ये करेंगे तो कार रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, एट्सेट्रा. तो वो क्या है, हमें इसेंशियल फीचर्स को शो करते हैं, उसकी बैकग्राउंड डिटेल और उसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं बताया जाता. तो ये हमारा कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर देना, उसको हाइड कर देना, उसका कुछ पार्ट हम छुपा देंगे, उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन हम शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी एसेंशियल फीचर्स जो हैं वही शेयर करेंगे. सो दोनों में आई थिंक डिफरेंस अभी क्लियर होगा कि दोनों में क्या चीज़ें. एनकैप्सुलेशन में क्या होगा, हम उन चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है, मैंने कैप्सूल का एग्जाम्पल दिया था, तो हम कैप्सूल खोल के ऑब्वियसली उन चीज़ को देख सकते हैं. मैं स्विच बोर्ड की बात करूँ तो स्विच बोर्ड में क्या है, बाहर से हमें स्विचेस दे दिए, हम उसको प्रेस करेंगे फैन ऑन हो जाएगा. ठीक है, बट मैं उस बोर्ड को हटा के भी तो एक्सेस कर सकती हूँ. तो वो क्यों लगा रखा है इसका स्विच बोर्ड, ताकि उसकी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट को हम हाइड कर दें, लेकिन दैट इज़ एक्सेसिबल. तो एनकैप्सुलेशन में क्या होगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, उसको वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, तो वो उसको एक्सेस कहाँ से करेगा, उसको सिर्फ जो उसके एसेंशियल फीचर्स हैं वही विजिबल होंगे. So this is about the data abstraction and encapsulation. And next feature is inheritance. Inheritance हमारा अभी पहले वाली स्लाइड में भी वर्ड आया था, तो मैंने बोला था आगे बताऊंगी. ठीक है, अभी इनहेरिटेंस का क्या मीनिंग है यहाँ पे. नॉर्मल अगर हम नॉर्मल इनहेरिट की बात करते हैं, साइंस का वर्ड है दैट इज़ इनहेरिट. इनहेरिट क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स से जो चीज़ हम में आ रही है, हमने बोला कि हमने हमारे पेरेंट का इनहेरिट किया है. ठीक है, मैंने बोल दिया मेरी आई कलर मैंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है. ठीक है, मैंने अपीयरेंस अपना अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि हमारी कुछ चीज़ ऐसी है जो पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है. ठीक है, यही हम जनरल मीनिंग समझते हैं इनहेरिट करने का. तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है हमारे पास में. यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास में कुछ पेरेंट क्लास होगी एंड कुछ चाइल्ड क्लास होंगी. तो अब पेरेंट की कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शंस या डेटा वो हम दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस कंसेप्ट. इनहेरिटेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हम वहाँ पे क्लासेस को डिवाइड कर देंगे, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, और उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे. अभी मैंने इसके पहले जब बात की थी तो मैंने बोला था कि हम एक क्लास के डेटा और फंक्शन को उस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ इनहेरिटेंस में कि हम उसको कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं उसको, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के थ्रू आप उस क्लास के डेटा को, उसके फंक्शंस को, उसके मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास भी यूज़ कर सकते हो, बट इनहेरिटेंस के केस में ओनली. ठीक है, तो इनहेरिटेंस उसमें क्या होगा, हमारे पास में
जैसे हम बोल रहे हैं कि पेरेंट होगा तो पेरेंट क्लास होगी, वहीं एक चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट क्लास के कुछ फंक्शन डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस दे सकते हैं चाइल्ड क्लास को। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या होता है, इसके लिए भी देखो मैं एक जनरल लाइफ एग्जांपल ही दूंगी ताकि उससे चीज़ें तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बात करूँगी तो उससे चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए अगेन मैं एक जनरल एग्जांपल लेती हूँ पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। मैं अपनी बात करती हूँ। मैं एज अगर मैं कॉलेज में प्रेजेंट हूँ तो मैं क्या हूँ वहाँ पे, एज अ फैकल्टी, ठीक है। बट अगर मैं अपने घर पर हूँ तो मैं अपने घर की मेंबर हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, अपनी डॉटर, सिस्टर, बहुत सारे रोल होते हैं। बट अगर मैं ही मार्केट में गई तो मैं कस्टमर हो जाऊंगी, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अगर मैं कहीं कुछ पढ़ने जा रही हूँ तो मैं स्टूडेंट हो जाऊंगी। तो मेरी अलग अलग फॉर्म्स हो गई, ठीक है। वो डिपेंड कर रही है सिचुएशन पे, प्लेस पे। कॉलेज में है तो मैं फैकल्टी हूँ, घर पर हूँ तो मैं घर की फैमिली मेंबर हूँ, ठीक है। मार्केट में हूँ तो मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट पर हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ तो मैं वहाँ स्टूडेंट हूँ। तो मेरी अलग अलग फॉर्म्स हो गई। तो ये क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूँ, दैट इज पॉली, दैट मीन बहुत सारी, एंड मॉर्फिज्म दैट मीन फॉर्म्स होना। सो एक ही चीज़ की बहुत सारी फॉर्म होना, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ, प्लस। अब प्लस अगर मैंने 1 और 2 नंबर के आगे लगा दिया तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। बट अगर वहीं मैंने इसको कैरेक्टर्स के आगे लगा दिया तो ये क्या करेगा, उसको कॉन्केट कर देगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो गई, हम ये बोल सकते हैं। तो एक ही चीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स होना, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका रोल हो जाना, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। So an operation may exhibit different behaviors in different instances. तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑपरेशन जो है वो अलग अलग बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है अलग अलग इंस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। सो दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड बाइंडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं UPS के। इनके ऊपर अगर मैं आगे की बात करूँ तो जो आप लोग के वाइवा होते हैं कंपनीज के प्लेसमेंट के टाइम पर, इनमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों को सिंपल लग रहा है, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे, अगर इनको रिवाइज नहीं किया या आप लोग के दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठी हुई है तो आप लोग इसका आंसर 110% रॉन्ग दोगे उस केस में, ठीक है। तो तुम लोगों के माइंड में फिट करने के लिए ही मैं जनरल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रहे तुम लोगों को कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। सो एक ही चीज़ की, एक ही ऑपरेशन की मल्टीपल फॉर्म्स होना मल्टीपल इंस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। देन द नेक्स्ट वन इज डायनामिक बाइंडिंग। अब डायनामिक बाइंडिंग क्या है, इट रेफर्स टू लिंकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल कॉल टू द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द कॉल। यहाँ पे हम कुछ लिंकिंग करेंगे, ठीक है। अब लिंकिंग से इसका क्या मतलब होगा कि वो लिंकिंग जो होगी वो रन टाइम पर होगी। हम बोल रहे हैं ये प्रोसीजर जो है वो इससे हमें इन दोनों को आपस में लिंक करना है, तो रन टाइम पे उन दोनों की लिंकिंग होना, दैट इज नोन एज डायनामिक लिंकिंग। द नेक्स्ट वन इज मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन मच द सेम वे एज पीपल पास मैसेजेस टू वन अनदर। हम जैसे एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन को वो एक दूसरे को सेंड और रिसीव करते हैं और उसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैसेज पासिंग। सो दीज ऑल आर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने बात करी ऑब्जेक्ट्स की, क्लास की, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ें।